Good morning, students. We are going to do the exercise of the road not taken. So, the road not taken deals with very important aspect of life, that is making a choice. The choice selected makes or mars the future, as it depends upon two aspects. One, how the choice is made out, and second, what are the external forces. कि हमारी जो भी चॉइस होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दो एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है. नंबर वन इज हाउ टू मेक द चॉइस, कि हमने अपनी चॉइस कैसे बनानी है. एंड सेकेंडली, what are the external forces which are influencing our choice. It is seen that most of the people make right choice seeing the situation prevalent then. तो कहते ये देखा गया है, हमने अपनी लाइफ में अक्सर नोट किया है दैट most of the choices are made by the people by undergoing the situations which are prevalent at the time when they are going to make the choice. Yet outcome is not expected, but what happens that the results are not as expected as are thought by the person. The poem advises that one should make wise choice, as any hastily made choice can spoil one's future. That so it is said in the poem that whenever we are going to make a choice in life, we should be very careful at that time, because the choice which is made hastily means जल्दी से, जो जल्दबाजी में चॉइस की जाती है, that can spoil our life. So now we are going to do the exercise. The first question is, where does the traveler find himself? What problem does he face? तो जो ट्रैवलर है वो अपने आप को कहाँ पे पाता है. हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि पोएम की बिगिनिंग कहाँ से हुई थी, that there are two choices, two roads in front of the poet, and he is not able to make the choice between the two. So the first question is related to that only, that where does the traveler find himself. The traveler finds himself at an intersection of two roads in a forest. एक फॉरेस्ट में जहाँ से दो रोड्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, पोएट अपने आप को उस पॉइंट पे पाता है. What problem does he face? उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई वहाँ पे जाके? His problem is that it is not easy to decide which road he should take. Second is, discuss what these phrases mean to you. There are many phrases used by the poet in the poem. Those are, one is yellow wood, second is it was grassy and wanted wear, third the passing there, fourth leaves no step had trodden black, how way leads on to way. These are the phrases used by the poet. So you have to give the meanings of these phrases. First is yellow wood. Yellow wood means the trees had shed their leaves. पेड़ अपने पत्तों को कब गिराते हैं? When the color of the leaves turn yellow from green. जब जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन से येलो हो जाता है, देन द ट्रीज शेड द लीव्स. क्योंकि उस टाइम पे फिर जो लीव्स हैं वो लाइफलेस बन जाते हैं और वो अपने आप ही गिर जाते हैं. सो इट इज़ टेलिंग अस अबाउट द ऑटम सीजन. ये ऑटम सीजन के बारे में बताता है. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर मीन्स there was grass on the road. Grassy means grass on the road. Wanted wear. Wanted wear means wanted the people to walk on it. Then the passing there. Passing means the people who are passing from there. It means the people walking on the road. Then leaves no step
had trodden black, the leaves which had not been walked over, वो पत्ते जिनके ऊपर कोई नहीं चला है. How way leads on to way, how one road leads to another, right? Here way means road, that how one road gives the way to other road, कि हम एक रोड में जाते हैं वो आगे जाके डाइवर्ट हो जाती है, दो रोड्स बन जाती हैं, फिर हम जो भी रोड फॉलो करते हैं वो आगे जाके फिर डाइवर्ट हो जाती है. ठीक है, ये जो डाइवर्जन्स है ये है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. देन थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब्स देम. कहते कि क्या कोई डिफरेंस है दो रोड्स में जैसे कि पोइट डिस्क्राइब कर रहा है. इन स्टेंजाज 2 and 3, स्टेंजा 2 और 3 में कहते हैं आपने जो रोड्स के बारे में पढ़ा है तो क्या कोई डिफरेंस आया है. सो इन स्टेंजा 2 and 3 देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रोड्स. जैसे डिस्क्रिप्शन रोड नंबर स्टेंजा नंबर 2 में रोड्स की स्टार्ट हुई है, उसी वे में थर्ड स्टेंजा में डिस्क्रिप्शन एंड्स. उस मतलब सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में रोड्स के बारे में अलग अलग बातें नहीं बोली गई हैं. नेक्स्ट इज इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम. लास्ट टू लाइन्स में ही सारा डिफरेंस आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो. व्हाट वर द लास्ट टू लाइन्स? द लास्ट टू लाइन्स वर आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय and that has made all the difference. These were the last two lines, right? So what was given in last two lines? The poet says that I had chosen that road which was less traveled by the people and that had made all the difference. और उसी से ही सारा difference create हुआ था. तो अब थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है क्या. थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स. बी पार्ट इज इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम. सो इन द लास्ट टू लाइन्स देयर इज डिफरेंस. लास्ट टू लाइन्स में डिफरेंस है. ऑल द डिफरेंस इज देयर इन लास्ट टू लाइन्स. फर्स्ट बिगिनिंग में तो क्या था, उसने सोचा अपना, फिर डिसीजन लिया कि मैं वो चूज़ करूँगा जो कम लोग करते हैं, दिस एंड दैट, वो सब हो गया. बाकी पोएम उसी के बारे में है, लेकिन लास्ट टू लाइन्स में ये बताया है कि जो मैंने डिसीजन लिया था उस डिसीजन ने ही मेरी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया. इट इज़ सीन इन आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, राइट, कि पोएट ने बोला था मैंने वो रोड चूज़ की थी जो कम लोग ट्रेवल करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन. लास्ट टू लाइन्स का क्या मीनिंग है. लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट. बेटे अदरवाइज तो देखो इसमें आप अपना ओपिनियन दोगे. ठीक है, इस पोएम में आपने अपना ओपिनियन देना है कि अब उसने ये लिखा है पोएट ने दैट कि मैंने जो अदर रोड चूज़ की थी, वन आई हैड लेफ्ट फॉर सम अदर डे, कि एक मैंने किसी और टाइम के लिए छोड़ दी थी. ठीक है, लेकिन उससे सारा डिफरेंस हुआ है. लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि जो डिफरेंस था वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव डिफरेंस आया. ठीक है, कि उसको बेनिफिट्स हुए आगे जाके या लॉसेस हुए. तो इसमें वैसे आप अपने व्यू दोगे कि लुकिंग बैक, कि जब पोएट पीछे देखता है, जब उसने डिसीजन लिया था, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस, कि क्या उसको अपनी चॉइस पे रिग्रेट होता है, दुख होता है, और ही एक्सेप्ट्स इट. सो मैं आपको आंसर का हिंट दे देती हूँ. द लास्ट टू लाइन्स कंटेन्स द थीम ऑफ द पोएम. These mean that the poet chose one kind of career, though he wanted to choose the other. कि देखो अब being one person we can make one choice only. तो उसने भी एक करियर चूज किया, दूसरा उसने छोड़ दिया. And this had made all the difference. और इससे ही सारा डिफरेंस आया. He now thinks that if he had taken the other one, life would perhaps
हैव बीन डिफरेंट। अब वो ये सोचता है कि अगर उसने दूसरा रोड चूज किया होता, कोई और चॉइस बनाई होती, तो लाइफ डिफरेंट होनी थी। वो तो ऑब्वियस है कि अब एक चॉइस, सपोज आपके पास 10th पास आउट करने के बाद एक ऐसा टाइम है आपकी लाइफ का जब आपको पहले से ही डिसीजन ये लेना होता है कि आपने 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, ठीक है। अब आपने सपोज एक ने कॉमर्स लिया, आप सपोज कोई बच्चा कॉमर्स लेगा, कोई नॉन मेडिकल लेगा, कोई ह्यूमैनिटीज़ लेगा। सपोज जिसने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ लिया है वो अपने आप को बेटर समझते हैं एज कंपेयर टू उसने जिसने ह्यूमैनिटीज़ लिया है। ह्यूमैनिटीज़ वाले को वो नीचा दिखाते हैं कि तूने तो आर्ट्स लिया और हमारे पास ये है। लेकिन इन द लॉन्ग रन होता क्या है, जिसने ह्यूमैनिटीज़ लिया होता है उसने सब्जेक्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी नहीं लिए। जैसे अब जिसने साइंस ले ली उसको ऑब्वियस है कि +1 +2 में भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, कॉमर्स वाले को भी। आर्ट्स वाले ने थोड़ी लीनियंसी भी रखी जिसने ह्यूमैनिटीज़ लिया, 3 साल ग्रेजुएशन में भी अपने अकॉर्डिंग मेहनत कर ली, और सपोज 2-3 सालों के बाद उसने ग्रेजुएशन के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। या कोई HAS का टेस्ट क्लियर कर लिया, IAS का टेस्ट क्लियर कर लिया। अब साइंस वाला क्या है, अगर उसने सपोज ये सोचा कि मैंने बीटेक करनी है, बीटेक कर ली। अब बीटेक बहुत ज़्यादा है, कई बार ये होता है कि आपको बीटेक में करने के बाद उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी ह्यूमैनिटीज़ वाले को मिल जाती है। तो उस टाइम पे आके ये सोचते हो कि अगर मैंने भी उस टाइम पे वो चॉइस ली होती तो शायद मेरी लाइफ आज डिफरेंट होती। तो 10th के बाद आपकी कंडीशन कैसी होगी, जैसे यहाँ पे पोइट बता रहा है दैट देयर आर 2 roads in front, but being one traveler I am able to choose only one, right? I don't think that there will be any query now, ठीक है, बाद में पूछूंगी मैं, अभी आप सभी म्यूट पे ही हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड टू मेक डिफिकल्ट चॉइस, हाउ विल यू मेक द चॉइस। कभी आपको अगर डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़े तो आप कैसे करोगे, जब आपको कभी करनी पड़ी तो आपने कैसे की, ठीक है। तो बेटे इसमें क्या है कि आपने अपना ओपिनियन देना है इसी पोएम को बेस मानते हुए। बीइंग द पोएम द बेस ऑफ योर आंसर, यू विल गिव द आंसर दैट yes, once I faced this such type of situation when I had to make a choice of my own. It was very difficult for me to make the choice, but I made the positive choice and the results were good. Second is, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? कि जब आपने एक बार चॉइस बना ली है, चॉइस कर ली है, तो क्या कहते हैं अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, कि अगर आप कुछ और चॉइस करते तो क्या होना था, जहाँ आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। सो इट इज़ आई एक्सेप्ट द रियलिटी आफ्टर मेकिंग अ चॉइस, कि चॉइस बनाने के बाद मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।